गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पार्ट 4, इसमें एक प्रॉपर्टी बची हुई थी, उसे हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक्स के विषय में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। आज के बचे हुए टॉपिक में देखिए, फर्स्ट पॉइंट दिस वन, वी हैव टू concentric cell of conducting material. What we have? We have two concentric cell of conducting material. Outer one has charge plus Q1, which is uniformly distributed on their outer surface, and their radius is what? R1. And inner one have radius R2, and there is no charge develop on it. Remember कि outer cell have radius R1, have charge plus Q1, which is uniformly distributed over their outer surface, because we know that any charge given to conducting material distributed over their surface, and if their surface is what? Is sphere, there will be uniform distribution of charge. Inner cell concentric to larger one have radius R2, but there is no any charge develop on it. Result of which, देखिए, outer cell have charge Q1, तो because of this charge Q1 which lies at the outer surface of conducting cell outer one, potential at any point on the surface of cell or within the cell 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1. आउटर सेल का रेडियस R1 है, उसके ऊपर चार्ज प्लस Q1 है। बिकॉज ऑफ दैट वन, इस आउटर सेल के सरफेस के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल उसके अंदर के किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा, और दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1. और ये आउटर सेल inner cell which lies within outer one have no any their own charge, their net charge is what? 0. इसलिए इसका भी पोटेंशियल यही होगा, मीन्स इनर सेल के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल विल बी इक्वल टू दिस वन, या इनर सेल के अंदर के किसी पॉइंट का पोटेंशियल विल बी इक्वल टू दिस वन. इन सेकेंड केस, व्हाट आई डिड हियर, outer cell have same charge Q1, radius R1, but inner one which have radius R2 have earthing or grounded, that is connected with earth. So inner cell connected with earth, and we know that potential of earth is 0. What I am saying कि inner cell connected with earth और ग्राउंडेड, एंड ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है? 0. यहाँ हमने बताया ये इनर सेल के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल ये होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा. मीन्स इन फर्स्ट केस दिस इनर सेल हैव पॉजिटिव पोटेंशियल, लेकिन जब इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया, अर्थ से जोड़ दिया, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. मीन्स व्हाट? टू मेक the potential of inner cell 0, which is here positive, a negative charge should develop at their surface, that is what? Q2. Now potential at the surface of inner cell because of this one and because of this one,
and sum of these two will be equal to what? 0. क्यों? क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल बिकॉज ऑफ देयर ओन चार्ज Q2 which is induced on it because of this one should be equal to 0. तो potential at the surface of cell, inner cell, because of this Q1, that is V2, potential at the surface of inner cell due to charge on outer cell, that is what? Q1 is V1 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1, and potential at the surface of inner cell because of induced charge Q2 on it taken as V2 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R2. Again I am saying, since it is connected with ground, so sum of these two V1 plus V2 equal to what? 0. Now please you note it, then we will try to find the value of Q2 with the help of this one. Please note it. नोट कर लीजिए, इसके बाद तब फिर हम लोग कुछ देखेंगे.
I hope you have written it. अब देख लीजिए V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। V1 का वैल्यू A है और V2 का वैल्यू A है। लेट देम सम 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 दैट विल इक्वल टू 0। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन एवरीवेयर, कॉमन ले लीजिए। Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 इक्वल टू 0। अब देखिए Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 0 इंटू वाट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट बिकम व्हाट 0। हमें Q2 का वैल्यू निकालना है। देखिए Q2 बाई R2 इक्वल टू माइनस ऑफ Q1 बाई R1, Q2 will be equal to minus Q1 R2 by R1. This is the charge developed on inner one. Please note it, and that is important things. Now we will try to do some numerical problem based on electrostatics of conductor. और हमारा पहला क्वेश्चन होगा, देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1। एथिन metallic spherical cell
carries a charge q on it. A point charge q1 lies at their center and another point charge q is placed outside the cell at distance r from their center. All the charges are positive. Find the force acting on point charge q1. क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं ए थिन मेटालिक स्फेरिकल सेल कैरीज ए चार्ज क्यू। देखिए एक स्फेरिकल सेल है, कह रहे हैं ए स्फेरिकल सेल किसका है, मेटल का है, कैरी चार्ज क्यू ऑन इट। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, क्यू है। इसके सेंटर पर देखिए सरफेस का पर चार्ज क्या है, क्यू। सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज, देखिए इज नॉट आस्किंग दिस वन इज पॉइंट चार्ज बट देर इज व्हाट, q1 is what, point charge lies at their center O. There is another point charge q lies at distance r from the center of cell. So now there is question, what is net force, what is the total force acting on point charge q1. Condition is what, all the charges are positive in nature. तो अगर सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि व्हाट एवर बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी व्हाट एवर बी द इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन outside the conductor, whatever be the electrical configuration outside the conductor, net electric field because of all the charges outside the conductor is what, zero within it. यानी a charge q या a charge q both are lies outside to this
conducting cell, this conducting metallic cell, इसलिए बिकॉज ऑफ दिस वन और बिकॉज ऑफ दिस वन यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगी तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वन विल बी व्हाट, जीरो. दिस पॉइंट चार्ज Q1 will be unaffected from outside electrical configuration. मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इस क्वेश्चन का जवाब हम दे देंगे कि अगर एक कंडक्टिंग सेल है, उसके सरफेस पर चार्ज Q है, आउटसाइड टू सेल पॉइंट चार्ज Q है, तो बिकॉज ऑफ दिस टू इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of this spherical cell is equal to 0. That's why force acting on Q1 equal to 0. देखिए सॉल्यूशन, whatever with charge on the cell or outside the cell, net electric field at any point inside metallic cell is 0. Result of which force acting on point charge Q1 is 0. देख लीजिए F इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू ई, और यहाँ पर E का वैल्यू 0 है, मीन्स Q1 इंटू ई दैट बिकम 0. एक नंबर का क्वेश्चंस, ये सब एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सीधे सीधे आप 0 रख देंगे. 1 मार्क्स क्वेश्चन. नोट इट. I hope you did it. वन थिंग इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, देखिए ये सेल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है, यहाँ पर चार्ज क्या है, Q है, यहाँ पर चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज Q1, ये पॉइंट चार्ज Q1. इसके ऊपर फोर्स 0 होगा, लेकिन ये चार्ज Q का इसके ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि दिस वन इज व्हाट, कंडक्टिंग, दिस हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो बिकॉज ऑफ दिस वन इस फेस पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन इस फेस पर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. मीन्स व्हाट एवर बी द rearrangement of charge, no matter, but net force acting on this one will be equal to 0. ये लास्ट पार्ट जो हमने बताया
क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन हमने आपको बता दिया, इट मे बी आस्क्ड टू यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्या भाई? टू मेटालिक स्फीयर, टू metallic sphere having radius A and B are placed far away from each other, are placed away from each other and connected by thin conducting rod। A charge Q is given to one of the sphere। दो चार्जेस हैं और दो स्फेयर हैं, कंडक्टिंग हैं, रेडियस एक का ए दूसरे का बी, और कैसे कनेक्टेड हैं? थिन कंडक्टिंग रॉड। लेकिन एक को चार्ज कितना दे दिया? क्यू। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच ऑफ द स्फीयर in electrostatics इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन को देख लीजिए, डू फास्ट। टू मेटालिक स्फीयर हैविंग रेडियस ए एंड बी। हमारे पास दो मेटालिक स्फीयर हैं। एक स्फीयर जिसका रेडियस क्या है? ए है, मेटालिक स्फीयर। दिस इज व्हाट? अनदर मेटालिक स्फीयर, रेडियस इज व्हाट? बी। कनेक्टेड टुगेदर बाय कंडक्टिंग रॉड। ये कैसा है? कंडक्टिंग रॉड। अब क्या किया कि इन दोनों में से किसी एक को चार्ज क्यू दे दिया। क्या चार्ज दे दिया? क्यू। लेकिन अगर हम चार्ज क्यू इसको देंगे, बट इट इज कनेक्टेड थ्रू कंडक्टिंग पाथ, इसका कुछ चार्ज इसके पास चला जाएगा। तो चार्ज क्यू से Q1 लाइज ऑन दिस वन एंड Q2 इज व्हाट? लाइज ऑन दिस वन। मीन्स व्हाट? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस व्हाट? Q2। Q इज इक्वल टू व्हाट? Q1 प्लस Q2। दोनों पर बट गया। लेकिन इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? व्हेन इक्विलिब्रियम विल एस्टेब्लिश। देखिए, व्हेन दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, इक्विलिब्रियम विल एस्टेब्लिश व्हेन बोथ एक्वायर सेम पोटेंशियल। मीन्स अगर इसका पोटेंशियल V तो इसका भी पोटेंशियल क्या है? V। मीन्स व्हेन दे एक्वायर सेम पोटेंशियल V एंड V, at that instant this sphere have charge Q1 and this sphere have charge Q2, but Q1 plus Q2 is equal to what? Q। अब जरा देखिए, at equilibrium potential of this one because of this charge, potential of this one because of this charge will be equal to each other, that is what? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by A
इक्वल टू 1/4πε0 Q2/B। देखिए 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। Q1/A इक्वल टू व्हाट? Q2/A। Q1 यहां देखिए, यहां से Q1 को वैल्यू निकाल लें। Q1 इज इक्वल टू Q माइनस व्हाट? Q2। देखिए Q1 का वैल्यू क्या हो गया? Q माइनस Q2। देखिए Q1 के प्लेस पर Q माइनस Q2 बाई व्हाट? A इक्वल टू व्हाट? सॉरी, हियर विल बी B, Q2/B। देखिए स्प्लिट इट Q/A, यहां से Q2/A इधर ट्रांसफर कर दें, Q2/A प्लस Q2/B। अब देखिए Q2 कॉमन, 1/A प्लस 1/B। अब देखिए Q/A, Q2B प्लस A, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर, दैट इज व्हाट? AB। Q2 की वैल्यू निकाल लें हम लोग, AB इधर आ जाएगा, QAB, दिस हियर A plus B equal to what? Q2. A and A become cancel. QB, A plus B equal to what? Q2. Likewise यहां से हम Q2 का वैल्यू निकाल लें और इस Q2 का वैल्यू ला करके कहां रख दें? इस इक्वेशन नंबर 1, और इसे क्या कहते हैं? दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए इस 2 से हमने Q1 का वैल्यू निकाला, लाके कहां रख दिया? 2 में। हमें किसका वैल्यू मिल गया? Q2। लाइकवाइज हम Q2 का वैल्यू ले लें, लाके यहां पर रख दें, हमें Q1 का वैल्यू मिल जाएगा। नोटेट। I hope you can find the value of Q1. With this, I am concluding my today lecture. I hope you will like it. देखिए इक्वेशन एक कॉन्सेप्ट, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को दे रहा है कि अगर दो कंडक्टिंग मेटालिक स्फीयर कनेक्टेड टुगेदर बाय कंडक्टिंग रॉड, दे एक्वायर इक्विलिब्रियम. When they acquire equilibrium, then their potential become same, and to make their potential same, there will be what? Redistribution of charge between these two conducting material. With this I am concluding. I hope you like it. Again I am requesting to my all the viewers, please like, subscribe and make their own comments. It's okay.